میں یسوع کو خدا نہیں مانتا. میں مسلمان، میں کبھی مسلمان نہیں بنوں گا. اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے. یہ لوگ برے ہیں. اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے. یہ برے لوگ ہیں. میں کبھی مسلمان نہیں بن سکتا. یہ کہنا تھا جان فونٹین نامی ایک شخص کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کبھی مسلمان نہیں بنوں گا. یہ کہنا تھا جان فونٹین نامی ایک شخص کا. آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے جان فونٹین نے اسلام قبول کیا. عقیدے کے لحاظ سے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کس بات پر یقین کرتے تھے؟ کون سی بات سے آپ کو اپنے ایمان پر اعتراض پیدا ہوا؟ تقریباً 7 سال کی عمر میں نے سوچا، کیا یوں سمجھیں کہ ایک روشنی کی کرن جیسا لمحہ تھا جب مجھے محسوس ہوا کہ میں اس عقیدے پر ایمان نہیں رکھتا. میں یسوع کو خدا نہیں مانتا. میں مسلمان، میں کبھی مسلمان نہیں بنوں گا. یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے. یہ لوگ برے ہیں. امریکہ اور دیگر ممالک عراق اور افغانستان جا رہے تھے. مجھے خبروں میں یہ سب دیکھنا یاد ہے. ہم دوسروں کو آزادی دلائیں گے. ہاں جاؤ اور پکڑو ان مسلمانوں کو. ہاں جاؤ اور پکڑو ان مسلمانوں کو. گویا میں پورے جوش سے ان کا جذبہ بڑھا رہا تھا، کیونکہ مجھے کبھی اسلام کا درست تعارف حاصل ہی نہیں ہوا اور کبھی اس کی درست تعلیمات نہیں سیکھی تھیں. السلام علیکم برادر جان. آمد کا شکریہ. ہم آپ سے ایک انٹرویو لیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے یہ بتائیں جان فونٹین کون ہے اور کیا آپ ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں مختصر بتا سکتے ہیں؟ جی، میرا نام جان فونٹین ہے. میں نو مسلم ہوں. میں نے 2008 میں اسلام قبول کیا. اسلام سے پہلے میں ایک جیز سنگر تھا. میں افریقہ میں ہیرو پر تحقیق اور کام بھی کر رہا تھا. میرا تعلق مشہور شہر مینچسٹر سے ہے. یوں سمجھیں کہ ایک مکس پرورش رکھتا ہوں. میں اسکول، کالج گیا اور پھر کاروبار میں آ گیا اور گانا بھی شروع کر دیا. عقیدے کے لحاظ سے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کا ایمان کس پر تھا؟ میں ایک عیسائی کے طور پر پلا بڑا تھا، لہٰذا بہت چھوٹی عمر سے ہی میں چرچ جایا کرتا تھا. میں مختلف قسم کی چرچز میں جایا کرتا تھا. میں ایوانجیلیکل چرچز میں بھی گیا، جو کہ پروٹیسٹنٹ چرچ آف انگلینڈ کے مذہب سے ایک بالکل مختلف مذہب ہے. میں موسیقی بھی جانتا تھا، لہٰذا میں نے چرچ کا سنگیت بجانا شروع کر دیا. میں یوکلیلی، بینجو بجاتا تھا، بغل بجاتا تھا. بہت چھوٹی عمر سے ہی مجھے موسیقی سے بڑا لگاؤ تھا، لہٰذا نوجوانی کے زمانے میں نے گانا شروع کر دیا. میں 14 سال کی عمر سے گا رہا تھا اور جب میں 16-17 سال کا ہوا تو میں نے گائیکی کو پیشے کے طور پر اپنا لیا. مختلف جگہوں پر جیز کلبز اور کروز شپس اور فٹ بال میں مینچسٹر یونائٹڈ کے گراؤنڈز میں گایا کرتا تھا. اسلام لانے سے پہلے اس سے خوب لطف اندوز ہوا. مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں اس عروج کو پا چکا ہوں جسے میں میوزک انڈسٹری میں حاصل کر سکتا تھا. دنیا کا نمبر 1 سنگر بننا میری خواہش نہیں تھی. میں ایک جیز سنگر کی طرح گہرے رنگ کی جاذب شخصیت کا مالک بھی نہیں تھا. اور جب میں ان میں سے بعض کلبز میں گا رہا تھا، میں نے سوچا کہ جو میں پانا چاہتا تھا وہ پا چکا ہوں. یوں لگا کہ جیسے میں اپنا ہدف پورا کر چکا ہوں. اور اب جذبات سے خالی ایک احساس تھا. جب آپ مقصد پا چکے ہوں، کسی مخصوص شعبے میں کامیابی کے لیے آپ نے سخت محنت کی ہو اور پھر اچانک آپ اس عروج پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پہنچ سکتے تھے، تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ کیا میں اپنی ساری زندگی یہی کرتا رہوں گا؟ یہ لا حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ میں نے کاروبار بھی دیکھنا شروع کیا. میں نے ہیرو پر تحقیق شروع کی. اسی زمانے میں ایک سفر پر افریقہ گیا اور مختلف چیزیں کرنی شروع کی. کون سی بات سے آپ کو اپنے ایمان پر اعتراض پیدا ہوا؟ کیا وہ کوئی واقعہ تھا، کوئی سوچ تھی؟ ایسا کیا ہوا تھا؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. بہت چھوٹی عمر سے، تقریباً 7 سال کی عمر سے مجھے چرچ میں سنڈے اسکول میں جانا یاد ہے. ہمیں خدا کے بارے میں ایک گیت لکھنا ہوتا تھا اور میرے گیت کا نام تھا مسیح اور خدا. یہ کورس میں گایا جاتا تھا. یہ ریپ کی طرح تھا. میں نے کچھ اشعار لکھے تھے. مجھے ابھی بھی وہ اشعار یاد ہے، مگر میں ابھی انہیں گاؤں گا نہیں. اور مجھے یاد ہے کہ پاسٹر، جو کہ ایک نوجوان کارکن تھا، اس نے کاغذ کا ایک ٹکڑا لیا اور الفاظ کو بدل دیا. اصل میں میرا گیت تھا مسیح اور خدا، مگر پاسٹر نے اسے بدل کر دیا مسیح خدا ہے. اور تقریباً 7 سال کی عمر میں سوچتا تھا، کیا یوں سمجھیں گے کہ روشنی کی کرن جیسا لمحہ تھا جب مجھے محسوس ہوا کہ میں اس عقیدے پر ایمان نہیں رکھتا. میں نہیں مانتا کہ مسیح خدا ہے. مسیح علیہ السلام کے بارے میں میرا تصور تو یہ تھا کہ وہ عام انسانوں کی طرح خدا کے نبی کی حیثیت سے ایک انسان ہے، اور میں ہرگز یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا کہ مسیح علیہ السلام خدا ہے. لہٰذا یہ پہلا موقع تھا جب میں نے یہ سوال شروع کیا، اچھا تو پھر صحیح مذہب کون سا ہے؟ کیونکہ میں خدا پر ایمان رکھتا تھا اور خدا کے بارے میں میرے تصورات وہی تھے جو آج مسلمان ہونے کے بعد ہے. ہم خدا کا تصور نہیں کر سکتے. وہ ایک ہے، وہ ہمارے شعور سے بالاتر ہے. لیکن میرے لیے یہ تسلیم کرنا ہرگز ممکن نہیں تھا کہ مسیح علیہ السلام خدا ہے. لہٰذا چھوٹی عمر سے ہی یہ میرے لیے ایک چونکا دینے والی بات تھی. میں جانتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. میری پوری فیملی، میرے دوست، میری برادری سب اسی مذہب کے پیروکار تھے
और ये माकूल मजहब नहीं था। इस बात ने मुझे बेदार किया। आपने पहली मर्तबा इस्लाम के मुतालिक कब सुना? मैं ये कहूंगा कि पहली मर्तबा जब मैंने इस्लाम के बारे में सुना और बतौर मजहब इस पर सोचना शुरू किया, वो 9/11 का वाकया था। मुझे याद है मैं स्कूल में था, मैं वुडवर्क की क्लास में था। मैं झूलने वाले घोड़े की अपनी GCSE प्रोडक्ट बना रहा था और वहां एक हंगामा सा बरपा था। हमारे उस्ताद ने लैपटॉप लाकर 9/11 का वाकया दिखाया और हम ये जानकर हक्का बक्का रह गए वाकई कि कोई शख्स जहाज उड़ाता हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जा घुसा था। और मुझे हर तरफ से सिर्फ मुसलमान 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 की आवाजें आई। फिर वहां से मैं घर आया और मैं खबरें देख रहा था। मुझे वो वक्त याद है जब अमेरिका और दीगर ममालिक इराक और अफगानिस्तान जा रहे थे। मुझे खबरों में ये सब देखना याद है। मैं सोच रहा था कि हाँ, जाओ और पकड़ो इन मुसलमानों को। गोया मैं पूरे जोश से उनका जज्बा बढ़ा रहा था, इस्लाम के बारे में कुछ भी ना जानते हुए। मेरे ख्याल में मैं सिर्फ इतना जानता था कि इस्लाम एक दहशतगर्द मजहब है, ये लोग शर फैलाने वाले हैं। ये गोया इस्लाम से मेरा पहला तारुफ था। किस वजह से आपने इस्लाम की तरफ कशिश महसूस की? शुरू में मैं इस्लाम के बारे में ऑनलाइन मालूमात देख रहा था। जब यूट्यूब पहली मर्तबा मंजर आम पर आया तो यूट्यूब देखते हुए कुछ मुख्तलिफ वीडियोस नजर से गुजरी। जब मैं 18 साल का था, मैंने मगरबी अफ्रीका के मुल्क सेनेगल का भी सफर किया था। और जिन्हें मालूम नहीं उनके लिए बताता चलूं कि सेनेगल एक मुसलमान मुल्क है। जब मैं सेनेगल में था तो मैं दर हकीकत शुरू से मुसलमानों से बहुत खौफजदा था। उस 9/11 के वाक़े की वजह से मुसलमानों के बारे में अपने गलत तस्वुरात के बायस, लिहाजा दर हकीकत सेनेगल के सफर ने मेरा जहन खोल दिया। सबसे पहले मुझे इस बात का एहसास हुआ कि दुनिया में अफ्रीकी मुसलमान भी हैं। मैंने कभी अफ्रीकी मुसलमान नहीं देखे थे, लिहाजा मैं इस समझने में बहुत दिलचस्पी रखता था कि इस्लाम यहाँ कैसे पहुंचा। और जब मैं सेनेगल पहुंचा तो ये पहला मौका था कि मैंने अजान की आवाज सुनी। ये दिल को छू लेने वाली थी। मैं इबादत के लिए बुलावे की ये आवाज सुनकर बहुत खुश था। मैं इसे समझना चाहता था, मैं इसके मायने समझना चाहता था। और मैं कुछ मुसलमानों से मिला। मेरे एक भाई से मुलाकात हुई जो उस वक्त एक होटल में काम कर रहा था और उसने मुझे अपने घर आने और कयाम करने की पेशकश की। लिहाजा मैं कुछ वक्त के लिए उसके साथ रहने पर राजी हो गया। मैं एक मुसलमान शादी में गया, मैं मुसलमान के जनाजे पर भी गया और मैंने उससे और उसकी माँ और उसकी फैमिली को इबादत करते भी देखा। हम फर्श पर बैठकर साथ मिलकर खाना खाते थे और ये सब बातें मेरे लिए हैरत अंगेज थीं। उस वक्त क्या आपके जहन में मुसलमान होने का ख्याल आया था? मुझे इस्लाम की सच्चाई पर यकीन नहीं था। उनकी सकाफत और उनके साथ अपने कयाम का तजर्बा पसंद आने के बावजूद भी मुझे मुसलमान बनाने के लिए ये सब काफी नहीं था। इससे मेरी दिलचस्पी और भी बढ़ गई। ये अजीब बात थी क्योंकि मैंने ईसाईयत का सहारा लेते हुए इस्लाम पर हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि मैं जानता था कि ईसाईयत सच्चा मजहब नहीं है। सकाफती लिहाज से तो मैं अब भी एक ईसाई ही था। लिहाजा मैंने इस्लाम की खामियां तलाश करने की कोशिश शुरू कर दी। बाज मुसलमानों के साथ जोशीली गुफ्तगू भी की, लेकिन मैं जितनी ज्यादा तहकीक करता गया, जितना ज्यादा इस्लाम पर एतराज करता गया, उतना ही इसकी तालीमात और कुरान के पैगाम से मुतासिर होता गया। और मेरे ख्याल में मैं इस्लाम कबूल करना चाहता था। जब मैं ये कहता हूँ कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता था तो इससे मुराद ये है कि मैं इस्लाम को एक मौका देना चाहता था, क्योंकि अफ्रीकी मुझे इस्लाम के मुतालिक सिखाने में अपना किरदार रखते थे। सेनेगल में क्या आपको कोई ऐसी बात याद है जिसे आप कभी भुला ना सकते हो? जब मैं 18 साल का था, ये मेरे कबूल इस्लाम से 5 साल कबल की बात है, और जब मैं अपने उस मुसलमान भाई के घर में रह रहा था, उसकी दादी की वफात हो गई। उनकी उम्र 105 साल थी और ये रो रहा था। वो अपने बिस्तर पर बैठा रो रहा था। चनाचे में उसके पास जाकर बैठा। मैंने अपने बाजू से उसे थाम लिया और कहा कि पता है वो एक बेहतर मकाम की तरफ गई हैं। उसने जवाब दिया, मैं उनकी वफात पा जाने पर नहीं रो रहा। उसने मजीद कहा, वो मुसलमान थी, वो जन्नत में जाएंगी इंशाल्लाह। मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि वो बहुत बूढ़ी थी और मैं चाहता था कि वो तुमसे मिले ताकि वो दुआ करें कि तुम मुसलमान हो जाओ। उसकी बात ने मुझ पर बहुत असर किया। मैंने सोचा कि मैं कभी मुसलमान नहीं बनूंगा। ये तुम क्या बात कर रहे हो? मैंने ये बात उसे नहीं कही क्योंकि वो अपनी दादी की वफात पर पहले से ही गमज़दा था, मगर उसकी बात ने मुझ पर बहुत असर डाला। मैंने सोचा कि उस शख्स के लिए ये बात इतनी अहम क्यों है? वो क्यों रो रहा है? अभी तो उसकी दादी की वफात हुई है। वो उनकी वफात पर नहीं रो रहा। वो तो इसलिए रो रहा है कि वो मुझे मुसलमान देखना चाहता है। और यही वो बात थी जिसने मुझे सोचने पर मजबूर किया। वाह, ये शख्स हकीकतन ईमान वाला है। ये इस मजहब पर हकीकी ईमान रखता है। आपने इस्लाम कब और कैसे कबूल किया? मैंने बिलाखिर 23 साल की उम्र में इस्लाम कबूल कर लिया। मैं कोई तहकीक कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं उस वक्त गाना छोड़ना और कुछ दूसरी चीजें तर्क करना नहीं चाहता था। और शायद मुझे इल्म भी नहीं था कि मुसलमान कैसे बनते हैं। दर हकीकत मुझे इल्म ही नहीं था कि मैं मुसलमान हो सकता हूँ। मेरा ख्याल था कि आप पैदाइशी मुसलमान होते हैं, यानी ये चीज आपको वालिदैन से विरासत में मिलती है। मुझे नहीं मालूम था कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। ये मुझे तब मालूम हुआ जब मैं तहकीक कर रहा था और मैंने अब्दुल रहीम ग्रीन
और यूसुफ एस्टेस और दूसरे मजहब तब्दील करने वाले लोगों की वीडियोस देखी। तब मुझे एहसास हुआ कि वाह, हकीकतन बहुत से अंग्रेज और अमेरिकी लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं और मैं भी मुसलमान हो सकता हूँ। तो इस चीज ने मुझे फिर से सोचने पर मजबूर किया कि हाँ, ये एक ऐसी चीज है जिस पर मुझे गौर करना चाहिए। तो फिर आपको दावत किसने दी? मैं उस वक्त मिस्र में था और एक मस्जिद में गया। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे नमाज पढ़ना सिखाए, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने कहा, नहीं, तुम मुसलमान नहीं हो। मैंने कहा, खैर, मैं ईमान रखता हूँ। मैंने रमजान के रोजे रखे और नमाज पढ़ने की कोशिश की थी। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें कलमा शहादत कहना होगा। मैंने पूछा, शहादत क्या है? तो उसने मुझे कलमा शहादत बताया और मैं मुसलमान हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कंधों से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। मैंने खुद को पाक महसूस किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले ही ईमान रखता था। ऐसा नहीं था कि ईमान बस उसी लम्हे उतरा हो। मैंने हमेशा अल्लाह पर ईमान रखा था। और फिर मैं बरतानिया वापस चला गया। मैंने मस्जिद ढूंढने की कोशिश की और मैं उस वक्त मस्जिद जाने से भी डरता था। मुझे महसूस होता था कि मुसलमान दहशतगर्द हैं। मैं भी मुसलमानों के बारे में मनफी जज्बात रखता था। तो मैं एक जगह गया जो मुझे लगा कि कोई स्कूल है, लेकिन वो स्कूल नहीं बल्कि एक मस्जिद थी। और सुभान अल्लाह, इस्तकबालिये पर एक अंग्रेज मौजूद था। मैं चौंक गया। एक सफेद फार्म शख्स की हैसियत से मस्जिद में दाखिल होते हुए मैं तवक्को कर रहा था कि वहां पाकिस्तानी और अरब होंगे, और वहां एक सफेद फार्म आदमी मौजूद था। उसने मेरी मदद की, मुझे फातिहा सिखाई, मुझे छोटी सूरतें और नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया। मैं हर रोज वहां जाता। वो मुझे नमाज पढ़ने का तरीका सिखाता था। वो मुझे कुरान पढ़ते हुए सुनता। मस्जिद में कुछ और भाई भी थे। मैं वहां बैठकर कॉफी पीता और वो मुझे सिखाते थे। और इसी तरह मैंने अपना सफर शुरू किया। और आपके इस्लाम कबूल करने पर आपकी फैमिली और आपके करीबी अहबाब का क्या रद्द-ए-अमल था? मेरे ख्याल में शुरू में लोगों ने सोचा कि ये वक्ती चीज है और ये ज्यादा देर नहीं चलेगी, ये इससे बाहर निकल आएगा। और आज 13 साल बाद भी मैं एक मुसलमान हूँ। बिलाशुबा बहुत से लोगों के खदशात थे कि इस्लाम खतरनाक है और मुसलमान दहशतगर्द हैं, और मैं अच्छी तरह समझता हूँ लोगों के इन खदशात को, क्योंकि वो सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना मीडिया बताता है। और यही मुसलमानों का मसला है, क्योंकि मुसलमान गैर मुस्लिमों को सही इस्लाम की तालीम नहीं दे रहे। अगर गैर मुस्लिम इस्लाम के बारे में जानते तो वो ये दकियानूसी तसव्वुरात और खदशात ना रखते। तो वाकई ये शुरू में मुश्किल था। फैमिली के बहुत से अफराद और दोस्त परेशान और उलझन के शिकार थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सब ठीक है। मुसलमान होने के बाद आपको दरपेश सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? मेरे लिए सबसे मुश्किल काम नमाज पढ़ना था। अगर आपको आदत ना हो तो नमाज पढ़ना मुश्किल है, क्योंकि हम नमाज पढ़ने के लिए दिन में 5 बार इतना वक्त सर्व करने के आदी नहीं होते। इसके लिए मैंने एक तरीका अपनाया। मैंने खुद से वादा किया कि मैं रात को 5 नमाजें पढ़े बगैर नहीं सोऊंगा। तो तसव्वुर करें कि आप रात को सोने से पहले 5 नमाजें अदा कर रहे हो। वैसे इसकी इजाजत नहीं है, ये जायज नहीं है। बिलाशुबा एक मुसलमान होने के नाते आप कुफर और जहालत से निकलते हुए ये सब नहीं जानते, और जबकि अब आप दीन सीखने की कोशिश कर रहे हो। और फिर मैंने महसूस किया कि कभी कभी तमाम नमाजें एक साथ अदा करना बहुत मुश्किल होता है। इन्हें बारी बारी अदा करना आसान है। तो मैं समझता हूँ कि इससे मुझे सही वक्त पर नमाज अदा करने में मदद मिली। और जाहिर है, जब आप इस्लाम में आगे बढ़ते हैं तो आप मजहब के बारे में ज्यादा सीखते हैं। आपको मालूम होता है कि वक्त पर नमाज पढ़ना वाजिब है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया? ये एक लाजवाब सवाल है। हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत को देखते हैं। वो 1400 साल पहले आए। सहरा में एक आदमी पर अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई और उन्हें इंसानों का अजीम तरीन यानी नबूवत का दर्जा दिया गया। और उन्होंने दुनिया पर जो असरात छोड़े, यहाँ तक कि आज तक उनके पैरोकार उनकी सुन्नत और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। हमने उनके रास्ते पर चलने की कोशिश की। वो मोहब्बत जो हमें मिली, देखो हम आज यहाँ हैं। हम अपना माल और वक्त दीन पर सर्व करते हैं। वाकई इसी पर हमारा ईमान है। और जरा तसव्वुर करें कि इस्लाम के तमाम पैरोकार न सिर्फ वो लोग जो आज जिंदा हैं, बल्कि गुज़श्ता पिछले 1400 साल से सुन्नत की हिफाजत, इस अजीम इंसान के अकवाल और अफाल की हिफाजत और अल्लाह के रसूल की अतात कर रहे हैं। और जिस तरह वो इस दुनिया पर असरअंदाज हुए कि दुनिया का 1/3 हिस्सा इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करता है। आपको बस ये पता है कि वो मुसलमान है, ये सिर्फ तारुफ है। बाखुदा जब लोग इस अजीम इंसान और जो कुछ उन्होंने किया इस पर गौर करते हैं, और सबसे बढ़कर इस पैगाम पर जो उन्हें दिया गया और कुरान में इंसानियत के लिए दिए गए हल पर आप अपनी शरीयत, अल्लाह के कानून और हदायत लेकर आए और उनका मवासना किसी दूसरे मजहब से, किसी भी फलसफे या तर्ज जिंदगी से करें। इस्लाम दूसरे तमाम मजाहिब, तर्ज जिंदगी और इसकी माकूलियत को मात देता है, और इसे समझना भी आसान है। इस्लाम से पहले आपकी जिंदगी का मकसद क्या था और इस्लाम की बात क्या है? मकसद और मंजिल अल्लाह को देखना है, जन्नत में जाना और उन लोगों में शामिल होना है
जिन्हें अपने खालिक को हकीकत में देखने का मौका मिलेगा। यही सबसे बड़ा मकसद है। और जाहिर है इसके बाद अंबिया को देखना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और तमाम अंबिया के साथ बैठना और उनसे गुफ्तगू करना, यही मकसद है। इस्लाम से पहले मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि लोग वाकई जिंदगी के मकसद के बारे में सोचते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो अपना कोई मकसद बनाते हैं। मेरा तो नहीं था। आप बस दिन गुजारते रहते हैं। आप इस वक्त कौन से प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं? अपने लिए। मैं अफ्रीका में कुछ काम कर रहा हूँ। अफ्रीका में स्कूल्स तामीर करने का मंसूबा है। मैं वही के इस्लामी नुक्ता नजर और गुज़श्ता सहीफों के बारे में एक किताब भी लिख रहा हूँ। मैं इल्हाद पर भी एक किताब लिख रहा हूँ जो इल्हाद के कुछ मसाइल से निपटने के बारे में है। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है। मेरा यंग स्मोक्स नामिक पॉडकास्ट भी है, तो आप भी इसे सब्सक्राइब करें। इसके अलावा सिर्फ पढ़ना, मुतालिया करना, दावत देना और इस्लाम का पैगाम पहुंचाने की कोशिश करना मेरा काम है। अगर आपको दुनिया के तमाम गैर मुस्लिमों से बात करने का मौका मिले तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं उन्हें सिर्फ इस बात की तरगीब दूंगा कि वो खलूस से इस्लाम को देखें। इस्लाम उन मुसलमानों से सीखें जिन्होंने दीन का मुतालिया किया है। कुछ वक्त निकाल कर इस्लाम पर कुछ किताबें पढ़ें। समझें कि पिछले 1400 सालों से ये मजहब इतना गालिब क्यों रहा है। और बिलाशुबा इस्लाम ने दुनिया पर बहुत असर डाला है। हम बात कर रहे हैं कि दुनिया की 1/3 आबादी मुसलमान है, तो इस चीज की बदौलत आप अपने पड़ोसियों का एहतराम करने लगते हैं, अपने साथी इंसानों का एहतराम करते हैं। आपको पता करना चाहिए कि उनका अकीदा क्या है। कुछ वक्त निकालें, मुतालिया करें और इस्लाम के तसव्वुरात के बारे में जानें और बस खुद से मुखलिस रहें। मैं तमाम गैर मुस्लिमों की हौसला अफजाई करता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करें जो खालिक कायनात है। वही खुदा है जिससे आप जरूरत के वक्त दुआ करते हैं, वही खुदा है जिसकी आप इबादत करते हैं। बल्कि मुझे कहना चाहिए कि जब आपका त्यारा फिजा में डगमगाता है और आप हिचकोले खाते हुए जिस खालिक को पुकारते हैं, ये वही खुदा है जिस पर मुसलमान ईमान रखते हैं। यही वो खुदा है जिसकी मुसलमान इबादत करते हैं। लिहाजा उस खुदा से दुआ करें कि वो आपको सच्चा रास्ता अता करे। जब आप अकेले हों तो अपने कमरे में अपना सर फर्श पर रखें, बस अपना सर फर्श पर रखें और अपने खालिक से कहें कि आपकी रहनुमाई करे। आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे? मैं बस एक बात कहूंगा। मैं दर हकीकत उन मुसलमानों को मशवरा दूंगा जो ये देख रहे हैं। मुमकिन है आप नमाज ना पढ़ते हो या शायद आपकी नमाज वक्त पर ना होती हो सकता है आपका ईमान कमजोर हो सकता है आपको इस्लाम के बारे में ज्यादा इल्म भी ना हो। इस्लाम के बारे में मजीद जानने की कोशिश करें और अपनी नमाज पर तवज्जो दें। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप वक्त पर 5 नमाजें पढ़ें। बहसीयत मुसलमान अगर आप वक्त पर 5 नमाजें पढ़ते हैं तो सही तरीके से नमाज पढ़ें। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी ऐसे मकाम पर जा पहुंचेगी जहां आपका ताल्लुक आपके खालिक के साथ दुरुस्त होगा। दुनिया आसान है, ये जिंदगी आसान है। अल्लाह अर्राज़िक है, वही रोजी देता है, वही हिफाजत करता है, वो हकीम है। जब आप इन चीजों पर ईमान रखते हो तो कोई आफत आने पर आपको मालूम होता है कि इसके पीछे सबसे ज्यादा हिकमत वाली अल हकीम जात है। और ईमान जैसी चीज इल्म के जरिए आती है। ये सिर्फ मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ कहने से नहीं आती। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना, इसका सबूत ये है कि आप उनकी इताअत और पैरवी करें, इस पर मरहलावार अमल करें। इब्तदा नमाज से करें और चीजें रफ्ता रफ्ता दुरुस्त हो जाएंगी। और मैं हर एक को तरगीब देता हूँ, चाहे आप मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम, कि इस्लाम को संजीदगी से लें, कुरान पर गौर करें, कुरान पढ़ें, इस्लाम को मौका दें, इस बारे में पढ़ें कि इस्लाम क्या सिखाता है। सिर्फ खुदा वाहिद की इबादत करने वाली खालिस तौहीद। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत नहीं करते, हम किसी की इबादत नहीं करते, हम औलिया की इबादत नहीं करते, हम किसी की इबादत नहीं करते, हम बराह रास्त सिर्फ खुदा की इबादत करते हैं। जवाबात के लिए शुक्रिया। ये खूबसूरत इंटरव्यू था। उम्मीद है कि हम दोबारा मिलेंगे और मिलकर काम करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। बेशक अल्लाह का कोई शरीक नहीं, हम अल्लाह ताला की ही इबादत करते हैं और उसी की तरफ लौट के जाना है। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। सब्र चाहिए, नॉलेज गेन करने के लिए सब्र चाहिए। ऐसे ही नॉलेज नहीं आ जाता है। कई आपको हो सकता है स्कॉलर्स के पास जाना पड़े जब सवाल आपके जहन में आए, ट्रैवल करना पड़े, हो सकता है आपको सर्च करनी पड़े। ऐसे तो नहीं होता ना, फिर सर्च भी तो करवाता है ना अल्लाह ताला। तो शॉर्टकट्स की तरफ ना आ जाए, शॉर्टकट से नॉलेज नहीं आता।